Hello everyone, so today we will be solving chapter 4, playing with numbers. Exercise 4.1. Question number 1. Find all the factors of the following numbers. Bit A, 27. So now we have to find the factor of 27. We have to start from 1. So 27 divided by 1 is equal to 27. 27 divided by 3, because 27 is not divisible by 2, so 3. So 3 nines are 27. 27 divided by 9. 9 threes are 27. 27 divided by 27 is equal to 1. 27 ones are 27. So the factors of 27 are the integers that divide 27 eventually. So final answer will be for 27, factor of 27 are 1, 3, 9 and 27. Second bit is 60. Now divide 60 with 1. Divide 60 from 1, that will be 60 ones are 60. 60 divided by 2, 30. 60 divided by 3, that will be 20. 60 divided by 4, 15. 60 divided by 5, 12. 60 divided by 6, 10. 60 डिवाइडेड बाय 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा डिविजिबल, 10 इज इक्वल टू 6. देन 60 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा 5. 60 डिवाइडेड बाय 15 4 हो जाएगा. 16 डिवाइडेड बाय 20 is 3. 60 divided by 30 is 2, and 60 divided by 60 is 1. So the factors of 60 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 and 60. Okay, this was bit C, not B. Bit B, 36. So 36, divide it from 1, 36. 36 divided by 2, 18. 36 divided by 3, 12. 36 divided by 4, 9. 36 divided by 6, 6. 36 divided by 9, that is 4. 36 divided by 12, 3. 36 divided by 18, 2. 36 divided by 36, that is 1. So 36 इस नंबर में से, इस नंबर से डिविजिबल हो सकता है. So the factors of 36 are 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. Bit D, 220. 220 divided by 1, 220. 220 divided by 2, 110. 220 divided by 4, 55. 220 divided by 5, 44. 220 divided by 10, 22. इसके लिए आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से रटा होना चाहिए.
220 divided by 11, 20. 220 divided by 20 is 11. 220 divided by 22 is 10. 220 divided by 44 is 5. 220 divided by 55 is 4. 220 divided by 110 is 2. And 220 divided by 220 is 1. So the factors for these are 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110 and 220. Last bit E, 174. So 174 divided by 1, 174. 174 divided by 2, 87. 174 divided by 3, 58. 174 divided by 6, 29. 174 divided by 29, 6. 174 divided by 58, 3. 174 divided by 87, 2. 174 divided by 174, 1. So the factors for these are 1, 2, 3, 6, 29, 58, 87 and 174 itself. Question number 2. Check whether bit A, 2 is a factor of 33. So पहले डिवाइड करेंगे हम 33 को 2 से. 2 1s are 2, then 3 minus 2 1, 2 6s are 12, 3 minus 2 is 1. तो हमारा रिमाइंडर 1 है. So that's why 2 is not a factor of 33. 2 is not a factor of 33. अगर रिमाइंडर हम लोग का 0 आता या 2 आता तो हम लोग का फैक्टर 2 होता. B, 3 is a factor of 200. Factor of 200. So अभी 200 को डिवाइड करेंगे 3 से. 3 7s are 21 होता है. So 3 6s are 18. 0 नीचे आ गया. 10 minus 8 हमारा 2 हो जाएगा. Then ये हमारा 1. 1 minus 1 0. So 3 6s are 18. Again 10 minus 8 हमारा 2 हो जाएगा. 1 minus 1 0 हो जाएगा. So हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा है. अगर हमारा रिमाइंडर 0 या 3 होता तो ही जाके ये डिविजिबल होता 3 से. So this is 3 is not a factor of 200. C, 5 is a factor of 445. 445 को डिवाइड करेंगे 5 से. 5 8s are 40. 4 5 को नीचे लाएंगे. 4 minus 4 तो 0 होता है. 5 9s are 45. सो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. सो दैट्स वाई 5 इज अ फैक्टर ऑफ 445. Bit D, 7 is a factor of 2401. डिवाइड कर लेंगे. 2401 डिवाइडेड बाय 7. सो 7 3s are 21.
4 माइनस 1 आ जाएगा 3, 2 माइनस 2 0, देन 7 4 ज़ा 28, 10 माइनस 8 हमारा 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये 1 नीचे आएगा, देन 7 3 ज़ा 21, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0, 0 या 7 हो जाएगा तो हमारा जो फैक्टर है इट्स डिविजिबल बाय दिस नंबर. सो 7 इज अ फैक्टर of 2401. So now question number 3. Sort out the prime numbers and the composite numbers from 17, 56, 83, 122, 29 and 99. ओके सो प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स का कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर्स नहीं होता है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. सो फ्रॉम द गिवन लिस्ट हमारा प्राइम नंबर्स हो गया 17, 83 and 29. Then composite numbers क्या होते हैं? Composite numbers is a natural number that is greater than 1 and that is not a prime number. वो prime number नहीं होते हैं लेकिन it has at least one divisor other than 1 and itself. So list के हिसाब से हमारे पास जो composite number है वो है 56, 122 and 99. Question number 4, finding prime numbers between 10 and 50. So the prime numbers will be 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 and 47. So question number 5. A. Write the following. फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 2. पहला 6 मल्टीपल 2 का लिखेंगे जो कि होगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12. सो हमारा पहला 6 मल्टीपल्स हो गए 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Now bit B. First 5 multiples of 5. पहला 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 5 5s are 25. So हमारे first 5 multiples 5 के हो गया 5, 10, 15, 20 and 25. Then next bit C, first 10 multiples of 10. 10 के first 10 हो जाएंगे 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 6s are 60, 10 7s are 70, 10 8s are 80, 10 9s are 90 and 10 10s are 100. सो ये है हमारे 10 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स. बिट डी, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12. सो 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48 and 12 5s are 50. सो ये है हमारा 5 मल्टीपल्स ऑफ 12 जो कि है 12, 24, 36, 48 and 60. सो क्वेश्चन नंबर 6. राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100. 50 और 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स है वो हम लोग लिखेंगे. और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो डिविजिबल बाय 1 या तो इटसेल्फ खुद से होंगे या तो 1 से डिविजिबल होंगे, वो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए. तो क्या क्या हो सकते हैं? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, देन 83 आ जाएगा, 89 एंड देन 97. सो ये सब 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है बस. देन नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 40 एंड 60। 40 एंड 60 के बीच का इवन नंबर्स लिखेंगे, बहुत ईजी है। 40 एंड 60 के बीच का, सो हो जाएगा 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 and 58। क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑल द ऑड नंबर्स लेस देन 20। 20 से कम होगा वो ऑड नंबर्स हम लोग को लिखना है। सो वो हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and 19। So question number 9, express each of the following as the sum or two or more prime numbers। दो प्राइम नंबर्स का सम करके हमें वो आंसर निकालना है, एंड वो एक आंसर का हमें सम निकालना है। सो फर्स्ट वन इज ए 15। सो आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स दैट इज़ लेस देन 15। 15 से कम होंगे, तो जो 15 से कम हैं प्राइम नंबर्स वो क्या क्या हो जाएंगे हमारे, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। अभी हम लोग को इन्हीं के बीच के दो कोई नंबर्स लेना है ताकि हम सम करके ये नंबर निकाल सकें, 15 निकाल सकें। कुछ कॉम्बिनेशंस लेंगे। सो एक हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2 + 13 हो जाता है 15। देन और एक है कॉम्बिनेशन जो होगा 3, 5 + 7 = 15। सो ये दोनों हमारा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। देन नेक्स्ट इज़ बी दैट इज़ 13। इससे कम के प्राइम नंबर्स लिखेंगे 2, 3, 5, 7 एंड 11। बस हो गया। अब इसके कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, 2 + 11 = 13। देन और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 + 3 + 7 जो कि हो जाएगा 13। लेकिन हम यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं करेंगे, सो हम ये कॉम्बिनेशन को एज अ आंसर लेंगे। देन लास्ट बिट सी 37। 37 से कम प्राइम नंबर्स देखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31। अब इसके कॉम्बिनेशंस देखते हैं 7 + 13 + 17। सो ये हमारा हो जाएगा 37। क्वेश्चन नंबर 10, express each of the following numbers as the sum of the two odd prime numbers। okay, so bit A 42। अभी हमें दो प्राइम नंबर्स के सम करके ये आंसर निकालना है, इसका सम निकालना है हमें इस नंबर के लिए। किसी एक कॉम्बिनेशन हमें देखना है। सो देखते हैं अभी ऑड प्राइम नंबर्स जो कि 42 से कम होंगे क्या क्या होंगे, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 एंड 41। अभी हमें इनमें से कोई दो ऑड प्राइम नंबर्स लेना है। सो हमारा कॉम्बिनेशन बैठेगा 5 + 37, ये हो गया एक 42, और एक 11 + 31 42, और एक 13 + 29 42, और एक हो जाएगा 19 + 23 42। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, बट 5 + 37 = 42 मैं ये ले रही हूँ। नेक्स्ट बिट बी 32। अब इससे कम वाले ऑड प्राइम नंबर्स देखते हैं क्या है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31।
अभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखते क्या क्या हो सकता है। 3 + 29 = 32। बिट सी 50। सो 50 से कम नंबर्स के प्राइम नंबर्स देखेंगे। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। कॉम्बिनेशंस देखते हैं क्या हो सकते हैं। 3 + 47 = 50। Subscribe for more such solution videos.